Dear students, a very good morning to all of you. Here I am Manjay Pramane. Today in this morning, I would like to discuss a very interesting topic, and you know that you were reading the chapter. This chapter name is World's Tale Stories, and regarding this chapter, there are many historical monuments and sites. I already discussed about that, and last live class I already discussed what about the water arrangement and light arrangement at that time, how that was very amazing. Even in this day, you can't imagine such type of technological development at that time. So all these things regarding this chapter already I discussed. Today in this class, this is very interesting topic, and this is very different topic to know, because this is very interesting in the sense of in further study, especially geography and mathematics and many aspects of study. You have to know the basic concept of science. So this chapters, this portion, this subtopic is very important. So I think you will be very careful about it. So here you can see the picture, and in this picture, from this picture you can get the idea about the site. And the picture, from this picture you can see that here the sun, here you can see, here you can see, sorry, here you can see the sun, and the sun is rising now. And in this morning you can see also the sun rising how and in which side. And here a girl standing, and she is watching, she is seeing towards the sun how it is rising. And from our elders already we know about that the sun every day, each and every day, the sun rises in the side of east, and it set towards the west in the evening. So this is basic concept that सूरज जो है वो पूर्व की तरफ उगता है और पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ वो ढल जाता है शाम को। तो इससे हम साइड को इंडिकेट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ताकि हम अगर सुबह सुबह हम सूरज की तरफ मुंह फिरा करके सूरज की तरफ हम देखते हैं, सुबह सुबह अगर हम सूरज की तरफ, जैसे ये लड़की देख रही है, वैसे अगर सूरज की तरफ हम देखते हैं तो हमारे बाएं हाथ, सूरज अगर पूर्व दिशा में है तो हमारे बाएं हाथ जिस दिशा में है, अगर हम फ्रंट में सूरज को देख रहे हैं तो हमारे पीछे, अगर फ्रंट में अगर पूर्व है तो हमारे पीछे क्या होना चाहिए, उसका ऑपोजिट पश्चिम होना चाहिए। और बाएं हाथ जिस तरफ है लड़की का वो नॉर्थ है, और दाएं हाथ जिस तरफ है वो साउथ है। तो इससे भी हम साइड को डिनोट कर सकते हैं। आगे हम इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। टेल एंड राइट, लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकुंडा, ऑन द मैप एरोज शो ऑल द 4 डायरेक्शन। So there are many questions regarding the map. At first we have to go through the map, and we have to know about some basic features and basic concept of the map. Here you can see, this is the map of Golconda Fort, and I already discussed about that in our group center CRPF also. You can see and nearby the quarter guard there is a map of our group center, and the map denotes where the Kendriya Vidyalaya is situated, where the hospital is situated. All these things in the group center denotes the map, and by watching the map we can get the idea about the many places in the group center where those places situated. So all the places such as a block, a district, a state and a country also, the map is the miniature form of a place. That may be district, that may be block, that may be state and country also. तो एक मानचित्र हमें एक बड़ा जगह का छोटा सा रूप है, जिसके जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है, और उसको हम जब भारत के मानचित्र को हम देखते हैं तो उस मानचित्र के दौरान हम भारत को समझ सकते हैं, भारत को एक छोटे से रूप में देख सकते हैं, कहाँ क्या है, किधर क्या है। तो उसी तरह से हम अपने ग्रुप सेंटर के मैप मानचित्र के बारे में भी मैं बताया था,
या आप क्वार्टर गार्ड जो ग्रुप सेंटर के अंदर रहते हैं, CRPF क्वार्टर्स में, वो देख सकते हैं कि ग्रुप सेंटर में जहाँ क्वार्टर गार्ड के पास वो मानचित्र हैं, उसको देख करके आप आइडिया you can get the idea about the places inside the group centers such as hospital, school, canteen. There are many places, mandir, gurudwara, all these places and दर्शाया गया है वो all those places are shown, already have been shown in the map of group center, and that is situated in the nearby quarter guard. So such type of maps here you can see also that this one is Golconda Fort, and regarding this oil already I discussed in last classes. So the main point is here you can see this one, the map, and when you see a map at that time the map is in front of you. When the map is in front of you, the upper part of the map, here you can see the upper part of the map, the upper part of the map, here you can see a triangle, a black triangle, and on the top of the black triangle here written N, and N denotes north, North, N denote north. Next you can see here on the below of the map, here you can see also a triangle, and that is black triangle. On the bottom of the triangle here written S, and you can you know about it that S, that means S denotes south, SOUTH. So this is clear that the upper part of the map, when you are seeing a map, when you in front of you a map standing, then you can get the idea what side of the map is denoted, is considered as north side, and what side of the map considered as south side. The basic concept is the upper side of the map is considered as north side, and lower side of the map, that is considered as south side. So if you अगर आप इसमें एक बीच में बिल्कुल वेस्ट का जो यहाँ लिखा है, यहाँ से अगर यहाँ तक खींचेंगे तो जो अपर पार्ट हमें ये जो पार्ट मिल रहा है, दिस कैन बी सेड एज नॉर्थ एंड दिस कैन बी सेड एज साउथ. सो upper half part of the map, that can be considered as north side, and lower part of the map, that can be considered as south side. यहाँ फिर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ लिखा हुआ है W और यहाँ लिखा हुआ है E. दैट मीन्स यहाँ भी ये जो है, जब भी आप मैप को देखेंगे आपके सामने एक मैप मानचित्र है, तब आपके बाएं हाथ जिस तरफ है उस तरफ के साइड को आप वेस्ट बताएंगे. दैट साइड कैन बी कंसिडर्ड एज वेस्ट साइड, एंड टूवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ यू इन द फ्रंट ऑफ मैप, व्हेन यू आर सीइंग ए मैप, जब आप मैप को देख रहे हैं तब आपका दाहिने हाथ जिस तरफ है, राइट हैंड, उस तरफ ईस्ट होगा. तो ये आपको बेसिक समझना है कि ऊपर की हिस्सा जो है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, और बाएं हाथ जिधर है वो वेस्ट है, और दाहिने हाथ जिधर है वो ईस्ट है. अब अगर हम लाइन को ऐसे खींचेंगे कि हम अगर ईस्ट वेस्ट को जोड़ देंगे तो हमें नॉर्थ साउथ मिल जाएगा, और अगर हम नॉर्थ साउथ को जोड़ देंगे तो हमें ये पार्ट मिल रहा है ये वेस्ट हो जाएगा, और ये पार्ट जो मिल रहा है ये ईस्ट कहलाएगा. तो इस तरह से हम इसको समझेंगे. और अगर हम फिर ऐसे इसको लाइन खींचेंगे ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ साउथ को जोड़ देंगे, यहाँ नॉर्थ है N, ये साउथ है S, ये W है, ये E है, ईस्ट है. तो इसको अगर जोड़ देंगे तो ये जो पार्ट मिलता है, इस पार्ट को हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट.
इसलिए भारत के जो इस तरफ, भारत के मैप को जब हम देखते हैं, इस तरफ के जो स्टेट्स हैं उसको हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कहते हैं, और इस तरफ को हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये कोना वाला हिस्सा को हम कह सकते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट, और इस कोने वाले हिस्सा को कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह से ये है साउथ ईस्ट और ये है साउथ वेस्ट। तो इस तरह से हम दिशा को डिनोट कर सकते हैं, दिशा को हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जब हम मानचित्र को देखेंगे तो मानचित्र के कौन सा दिशा क्या है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, टेल एंड राइट में। तो पहले तो आपको मैप को बहुत ही केयरफुली देखना है, और जब मैप की बात आती है तो उसमें आप देखे होंगे नीचे एक बॉक्स, इस तरह का एक बॉक्स होता है, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का एक बॉक्स होता है। और इस बॉक्स में हम क्या क्या देख रहे हैं, जो मैप में सारा चीज़ है वही देख रहे हैं, सिंबलाइज किया जाता है। जैसे कि आप भारत के मैप को, मानचित्र को देखेंगे, प्राकृतिक जो फिजिकल मानचित्र को देखेंगे तो उसमें आप पहाड़ को दिखाया जाता है किसी एक सिंबॉलिक तरीके से, नदी को दिखाया जाता है, रेल लाइन को दिखाया जाता है एक अलग सिंबॉलिक तरीके से, स्टेट्स बॉर्डर को अलग सिंबॉलिक तरीके से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। कंट्रीज़ के साथ जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ है जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ये सब के साथ जो बाउंड्रीज़ है इसको अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो वो मैप का इंडेक्स है जिसके तहत हम सिंबलाइज करते हैं, और सिंबलाइज करके जहाँ जो चीज़ है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बताऊँगा कि यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ मैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टोर फॉर गन और गन पाउडर, लिखा हुआ है स्टोर फॉर गन और गन पाउडर, और इसको सिंबलाइज किया गया है एक आपको प्लेटफॉर्म जैसे रेलवे का होता है या फिर कोई भी वर्कशॉप होता है जहाँ कारखाना टाइप का इस तरह का दिख रहा है, एक सिंबल दिया गया है, एक चिन्ह दिया गया है कि इस तरह से जितना भी मैप में जगह दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ है, वैसे यहाँ है, दैट मीन्स ये सारा चीज़ जो दिख रहा है इस तरह के सिंबल जितना मैप के अंदर आपको दिख रहा है वो सारा क्या है, स्टोर फॉर गन और गन पाउडर है। क्योंकि ये फोर्ट का मैप है, तो फोर्ट का मतलब होता है किला, जहाँ डिफेंस करने का जगह, सेना रहते थे, राजा रहते थे, और सेनाओं के रहने की सारा व्यवस्था, हथियार बनाने की सारा व्यवस्था, तो जाहिर सी बात है यहाँ गन और हथियार रखने का स्टोर होगा, तो इसीलिए इसको सिंबलाइज किया गया। इस तरह से हर चीज़ को सिंबलाइज किया गया है। आप अगर अच्छा से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बाग जो है बगीचा, दैट मीन्स इसको सिंबलाइज किया गया इस तरह से। पैलेस मतलब राजा जो रहते थे, महल जो जितना हुआ करता था अंदर वो सारा है। रोड को ऐसे दर्शाया गया है, रोड जैसे अंदर के रोड जो हैं, दरवाज़ा जितना है उसको ऐसे दर्शाया गया है। हौज जो है, जो टैंक टाइप का है, जो बड़ा टैंक है जहाँ ज़्यादा पानी रहा करता था वो ऐसे दर्शाया गया। बार्डली जो छोटा सा टैंक टाइप का था जहाँ पानी रहता था उसको ऐसे दर्शाया गया है। स्टेयर्स, सीढ़ी जहाँ हुआ करता था उसको ऐसे दर्शाया गया था। तो ये सारे चीज़ को दिखाया गया है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये सारी चीज़ उपलब्ध है। जैसे कि रोड को दिखाया गया था तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है यहाँ से ये जो गया है ये रोड है, ये रोड है, ये भी रोड है, इस तरह से ये रोड है, ये इसके अंदर एक जगह से दूसरा जगह जाने का रास्ता है। तो इसको यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिंबलाइज किया गया है रोड्स को। रोड लिखा हुआ इसका सिंबलाइज, इससे हमें समझ में आ जाता है कि कहाँ क्या है, और इस तरह से मैप को गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं भी आपको कोई भी मानचित्र आपके हाथ लग जाए तो आप उसको समझ सकते हैं इस सिंबल के थ्रू। दूसरी बात और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं मैप के ये नीचे इस तरह का हर मैप में, या फिर आप ज़मीन का नक्शा देखेंगे घर में, जो पुराना नक्शा हुआ करता है, आपके दादाजी, आपके पापा ये सब को अच्छा से रखते हैं, है ना, तो उसमें आप देखे होंगे जो स्केल दिया हुआ होता है। तो स्केल क्यों दिया हुआ होता है? मैप क्या है? मैप एक छोटा सा रूप है। ये गोलकोंडा फोर्ट छोटा मोटा जगह नहीं है, बहुत बड़ा जगह है, फैला हुआ जगह है। उसको एक छोटा सा रूप दिया गया है कि कैसे हैं। आजकल तो सैटेलाइट मैप आ गया है जिसमें एकदम बिल्कुल गलत होने का कोई चांसेस ही नहीं है, लेकिन उस समय भी इस तरह से जब सैटेलाइट नहीं हुआ करता था फिर भी लोग मानचित्र बनाते थे और मानचित्र से लोग समझते थे।
तो यहाँ इतना बड़ा जगह को जब इतना छोटे एक मानचित्र के अंदर समझाया गया है, तो कैसे हम समझेंगे कि मान लो यहाँ आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर देता हूँ कि बाला हिसार से कोई अगर निकलता है तो उसको फतेह दरवाज़ा जाने तक कितना समय लगेगा। तो यहाँ तो आपको दिखने में लग रहा है कि ये तो एक कदम भी नहीं है ना, 4 उंगली का फ़र्क है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर हम स्केल से मापेंगे, इसको मेज़र करेंगे, तो ये कितना हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है। तो अगर 10 सेंटीमीटर है तो उस हिसाब से यहाँ स्केल में क्या दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। इस मैप में, जो मैप हम देख रहे हैं, इस मैप में 1 सेंटीमीटर का मतलब ऑन ग्राउंड अगर हम गोलकोंडा फोर्ट विजिट करेंगे तो वहाँ यहाँ 1 सेंटीमीटर का दूरी मतलब वहाँ 110 मीटर का दूरी। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। तो ये होता है मैप का स्केल। यहाँ 1 सेंटीमीटर का दूरी मतलब वहाँ ऑन द ग्राउंड 110 मीटर का दूरी, ये स्केल दिया हुआ है। अब हमें हिसाब करने में सुविधा होगी, हम स्केल लेकर के बैठेंगे और एक जगह से दूसरी जगह जहाँ भी आपको पूछा जाए कि इस दरवाजे से अगर इस दरवाज़ा आपको जाना है तो इसका दूरी कितना है, तो आपको स्केल से पहले मेजर कर लेना है कि कितना है, उस हिसाब से उसको गुना करना है। अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 से 110 को गुना कर। इस तरह से आप इसके साइड्स के बारे में भी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको सारा चीज़ समझ में आ गया। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको इस तरह से क्लैरिफाई करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप सॉल्व करके भेजेंगे। धन्यवाद।